أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. میں سمیہ طالب قرآن کی گریجویٹ ہوں. میں آپ لوگوں کا اس دورہ قرآن میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. انشاءاللہ اب ہم 28 پارے کا سیکنڈ پارٹ کریں گے. یہ سورۃ الصف ہے. سورۃ الصف مدنی سورت ہے. اس سورت میں میدان جنگ میں صف بنانے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام صف رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اور تسبیح کے معنی ہم کئی بار لے سکے پاکی بیان کرنا ہے اور بزی رہنا، سارا یہ سب چیز آتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لے کیوں تم کہتے ہو جو نہیں تم کرتے. بڑا ہے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو نہیں تم کرتے. مطلب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرے کہ جو تم کہتے نہیں وہ باتیں کیوں کہتے. ایمان والوں سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ایسے نہ بنو جیسے کہ تم نہیں ہو. دکھاوا مت کرو. دکھاوے اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ایسے باتوں پر لوگوں کا حکم نہ دو جس پر تم عمل نہیں کرتے. اور اس کہا جا رہا ہے کہ وعدے پورے کرو. بلکہ میں بتا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں سب بنا کر گویا کہ دیوار ہے شیشہ پلائی ہوئی. مطلب یہاں کی مطلب جو سب بناتے ہیں وہ جو ہے نا اتنی مضبوط، مطلب ایک دوسرے یہ رہتے ہیں جیسا شیشہ پلائی ہوئی جو دیوار ہوتی ہے جس سے مضبوط ہوتی ہے اس طرح سے ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے اے میری قوم کیوں تم اذیت دیتے ہو مجھ کو حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں رسول اللہ کا تم پر. تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے یعنی بنی اسرائیل ٹیڑھے ہوئے تو ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم پر تصدیق کرتا ہوں واسطے اس کے جو میرے آگے ہے تورات میں سے اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی آئے گا میرے بعد نام اس کا احمد ہوگا. اس میں جو ہے نا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی جو خوشخبری ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو جب آئے ان کے پاس 7 روشن نشانے تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلم کھلا. مطلب یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں کہنے لگے کہ کھلم کھلا جادو ہے بول کر بات کرنے لگے. اور کون بڑا ظالم ہے اسے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ بلائے گئے اس کی طرف بلائے جاتے اسلام کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت ظالم قوم کو. وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے. مطلب اپنے منہ اللہ کے نور کو مطلب یہاں پہ دین اسلام کو مطلب اللہ اپنے منہ سے بجھا دے. اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا اپنے نور کو. اور اگرچہ ناپسند کرے کافر چاہے کافر کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا مکمل کرنے والے ہیں. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. یہاں پہ ہدایت سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ غالب کر دے دین پر سارے کا سارا. اور آگے اور اگرچہ ناپسند کرے چاہے
मुश्रिकों को कितना भी नापसंद करे, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन को मुकम्मिल करने वाले हैं। लोगों जो ईमान ले हो, क्या मैं रहनुमाई करूं तुम्हारे ऊपर एक तिजारत की जो बचाए तुमको दर्दनाक अजाब से। तुम ईमान लाओ, क्या करना है उसके लिए, दर्दनाक अजाब से बचने के लिए क्या करना है? देखिए, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और जब तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपने माल, और ये कि तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ, अपने नफ्सों के साथ, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम इल्म रखते, अगर तुमको इल्म है, अगर तुम तिजारत करने हो तो क्या करना चाहिए? अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान करना चाहिए और अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहिए। वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, और वो दाखिल करेगा तुमको बागात में बहती है उनके नीचे से नहरें और घर पाकीज़ा बागात में से हमेशा के जालिक, ये है कामयाबी बड़ी। तो दुनिया में देखिए हम कामयाब होने के लिए क्या क्या करते हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे कामयाबी का फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर कामयाबी चाहिए तो क्या करो? अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह पर और अपने मालों के साथ अपने जानों के साथ जिहाद करो, और इस मतलब दुनिया की कामयाबी, अल्टीमेट कामयाबी जन्नत का मिल जाना है। और दूसरी चीज तुम मोहब्बत रखते हो उससे, मदद अल्लाह की तरफ से है और कामयाबी करीब है। खुशखबरी दे दो मोमिनों को, अल्लाह ताला हमको इसमें से कर दे। ए लोगों जो ईमान लाए हो जाओ अल्लाह के मददगार, जैसा कि कहा था ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से, कौन है और मदद करेगा मेरी? अल्लाह की तरफ कहा हवारियों ने, हम मदद करेंगे अल्लाह की। तो ईमान लाए एक ग्रोह ने बनी इसराइल में से, और कुफ्र के एक ग्रोह ने तो मदद की हमने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए थे उनके दुश्मनों पर, तो वो हो गए वो गालिब आने वाले। तो हवारियों ने क्या था, ईसा ने मदद के लिए पूछा था तो हवारी आए थे आगे, और ईसा अलैहि सलाम के जो पैरोकार है वो हवारी कहलाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सूरत सब कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह यहाँ पर सूरत जुम्मा करेंगे। सूरत जुम्मा भी मदनी सूरत है, इसमें जुम्मा के दिन का जिक्र आया है, तो इसलिए सूरत का नाम जुम्मा है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हर बार रहम करने वाला है। तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह के लिए हर वो चीज जो आसमानों में और जो जमीन में है, जो बादशाह है निहायत पाकीज़ा है, जबरदस्त है, हिकमत वाला। अल्लाह ताला के ब्यूटीफुल नाम देखिए, मालिक है, खुद्दूस है, अजीजुल हकीम है। वो अल्लाह ताला ये है, वो अल्लाह वो जात है जिसने भेजा अनपढ़ लोगों में यानी अरब के जो ये कुफर मक्का के जो थे उनमें लोग एक रसूल को, उन्हीं में से जो पढ़ता है उन पर उसकी आयत को और तज़किया करता है उनका, और सिखाता है उनको किताब को और हिकमत, और बेशक थे वो इससे पहले अलबत्ता खुलाई गए थे। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे उम्मियों में से, उन्हीं में से क्या क्या एक नबी को भेजा, किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो उनका तज़किया करते हैं और उनको सिखाते हैं किताब से कुरान और हिकमत से मुराद यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और वो थे खुली गुनाही में, मतलब शिर्क में, उसमें मुब्तला थे वो, और कुछ दूसरे उनमें से नहीं इनके साथ वो मिले, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। ये फजले है अल्लाह का, वो देता है जिसको वो चाहता है, और अल्लाह ताला बड़े फजले वाला है। और यहाँ पर आगे देखिए मिसाल उन लोगों की जो उठाए गए तौरात को फिर नहीं उठाए, उसको मानिंद मिसाल गधे की है तो उठाता है किताबों को, कितना बुरा है, कितनी बुरी है मिसाल ऐसे कौम की जिन्होंने झुटलाए अल्लाह की आयत को, और अल्लाह ताला नहीं देता जालिम कौम को। यहाँ पर गधे की मिसाल देके बताया जा रहा है कि जैसे गधे के ऊपर आप कितना भी किताबें रख दो उससे वो इल्म हासिल नहीं करता, तो जो लोगों को तौरात दी गई थी उनका ये हाल हो गया कि मतलब उनको मिली किताबें मिली लेकिन उससे कोई फायदा नहीं उठा सके। कह दीजिए ए लोगों जो यहूदी हो गए, अगर तुम गुमान रखते हो बेशक तुम दोस्त है अल्लाह लोगों के सिवा, तो तमन्ना करो मत की, क्योंकि यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। वो ऐसा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कहते ना तमन्ना करो मौत की, अगर हो तुम सच्चे, अगर सच्चे हो तो क्या करो? मरने की तमन्ना करो, और ना वो तमन्ना करेंगे उसकी कभी भी, बवजह के जो आगे भेजा उनके हाथों ने, और अल्लाह ताला जानता है जालिमों को। कह दीजिए बेशक मौत वो है जो भेजते उससे तो बेशक मिलने वाली है तुमको, फिर वो लौटाए जाएंगे तरफ गालिब जाने वाले के बाद अल्लाह ताला तक की तरफ लौट के जा रहा है। वहाँ हाजिर जाने वाले गैब का और हाजिर का, फिर वो बताएगा तुमको साथ उसके जो थे तुम इल्म कर कहते हो। मौत अल्लाह ताला देता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला का जबान का, फिर अल्लाह ताला बताएगा कि हम दुनिया में क्या करके आए, सब अल्लाह ताला बताएगा। ए लोगों जो ईमान है, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र को और छोड़ दो तिजारत को। ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम इल्म रखते, मतलब जब जुमे की नमाज हो जाए तो नमाज की तरफ ये करना चाहिए
और अपनी तिजारतों का, बिजनेस, सब चीज रोक देना चाहिए। फिर जब वो पूरे हो जाए नमाज, फिर फैल जाओ जमीन में, फिर में और तलाश करो दुनिया के फजले से। दुनिया के फजले मतलब अल्लाह ताला रिस्क वगैरह जो भी है ना भाई, तो मतलब अपने उसमें फैल जाओ और जिक्र करो अल्लाह का बहुत ज्यादा, ताकि तुम फला जाओ। मतलब अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होकर भी ये नहीं अल्लाह के जिक्र को बुझा, अल्लाह का जिक्र करते रहो। और उन्होंने देखा तिजारत या खेल तमाशा तो वो माइल हो गए उस पर, और उन्होंने छोड़ दिया आपको को खड़े कह दीजिए जो अल्लाह के पास है बेहतर है खेल तमाशे से और तिजारत से, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सूरत जुमा कबल, और यहाँ पर सूरतुल मुनाफिकून के अब हम स्टार्ट करेंगे। सूरतुल मुनाफिकून भी मदनी सूरत है, और ये इसमें इस सूरत में मुनाफिकून का जिक्र है। मुनाफिकून मुनाफिक की प्लूरल है। तो अब इसको देखते हैं, और इसको देखकर हम ये देखना चाहिए इसमें मुनाफिकीन की जो सिफत है, हम अपने आप को चेक करना है कि हम इनमें से तो नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। जब आते हैं तेरे पास मुनाफिक, वो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल है, और अल्लाह ताला जानता है, बेशक आप अलबत्ता अल्लाह के रसूल है। और अल्लाह ताला गवाही देता है कि मुनाफिक अलबत्ता झूठे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं कि खस्में खा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल है, लेकिन वो कहते कुछ है उनका, लेकिन अमल कुछ और होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुनाफिक झूठे हैं, उन्होंने बना लिया अपने खस्मों को ढाल, तो वो तो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, बेशक वो कितना बुरा है जो वो काम वो कर रहे हैं। ये बावजह उसकी कि बेशक वो ईमान लाए, फिर कुफ्र किया तो मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, नहीं तो वो समझते हैं अल्लाह ताला ने क्या कि वो ईमान लाए, फिर कुफ्र करते रहे, तो अल्लाह ताला ने क्या कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी। और मुनाफिकीन के लिए है कि मुनाफिकीन है ना सबसे निचले दर्जे में रहेंगे, दोज़ख की दर के असफल में रहेंगे। और जब देखो तुम उनको अच्छे लगेगी तुमको उनका जिस्म और उनकी बात करना, तुम सुनते जाओगे उनकी बातों को, गोया के बेशक वो लकड़ियां हैं, तकिया लगाई हुई लकड़ी। मतलब ये है कि मतलब उनकी हाल ढाल को देखो, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको देखो तो ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं वो समझते हैं कि हर ऊंची आवाज को अपने ऊपर वो दुश्मन है, बस बचो उनसे। वो मतलब हर जो कोई जो भी होता तो समझते उनके लिए बारे में, तो और अल्लाह ताला कह रहे वो दुश्मन है, बस बचो से गारत करे उनको अल्लाह कहाँ से वो फेरे जाते हैं। और जब कहा जाता है उनसे आओ बख्शिश मांगते हैं तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल मोड़ते हैं अपने सिरों को, और तुम देखते हो उनको वो बाज रहते हैं और वो तकब्बुर करते हैं। मतलब अल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए बख्शिश मांगते हैं तो क्या करते हैं, उसे मुंह मोड़ जाते हैं, वो तकब्बुर करते हुए पलट जाते। बराबर है उन पर बख्शिश मांगो तुम उनके लिए, या नहीं तुम बख्शिश मांगो उनको, हरगिज नहीं अल्लाह ताला बख्शेगा उनको, बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता फासिम को, क्योंकि मुनाफिकों का ये अमल ऐसा, अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको कभी बख्शिश नहीं होगा। वो लोग हैं जो कहते हैं ना तुम खर्च करो ऊपर जो अल्लाह के रास्ते में है, यहाँ तक के वो भाग जाएं, और अल्लाह ताला के लिए खजाने हैं आसमानों के और जमीन के, लेकिन मुनाफिक लोग नहीं समझते। वो कहते हैं अलबत्ता अगर हम लौटेंगे। यहाँ पर देखिए जब ये बनी मुस्तलिक से जो ना ये मुसलमान और ये लोग सब लोग लौट रहे थे, तो बनो मुस्तलिक में से की वापसी में अब्दुल्ला मुनाफिकीन ने ये बात कही थी, मतलब कि जो आगे जो बात आ रही है कि वो कहते हैं अलबत्ता अगर हम लौटे हम तो मदीने की तरफ अलबत्ता जरूर निकालेगा ज्यादा इज्जत वाला उससे जो ज्यादा जलील हो। नौज़बिल्ला, ये मुसलमानों को और का अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। यहाँ पर ये मुनाफिक बनी मुसलिक से जब लौट रहे थे तो मुनाफिकों ने ये बात कही थी कि इज्जत वाला क्या करेगा, जलीलों को बाहर निकाले। नौज़बिल्लाह, मुसलमानों की बात कही थी, ए लोगों जो ईमान लाए हो नहीं गाफिल करे तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद अल्लाह के जिक्र, और जो कोई करेगा ये तो यही लोग वो खसारा पाने वाले। मतलब माल कमाने की धुन में और औलाद की तरबियत औलाद के पीछे रहकर अल्लाह ये चीजें क्या करे, हमको अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं करे। और खर्च करो उसमें से जो रिस्क दिया हमने तुमको इससे पहले कि आ जाए तुम में से किसी एक को मौत, और वो कहता रह गए हमारे रब क्यों नहीं मोहलत देता तू मुझको कि एक करीब के वक्त तो मैं सदका करता और मैं हो जाता सालिहीन में से। जब हम मर जाएंगे तो हम हसरत करेंगे कि हमको थोड़ा चांस मिल जाता तो हम जाके सदका करेंगे। तो आज हमारे पास मौका है, आज हम जी रहे तो क्या करें, हमें भी अल्लाह ताला हमको सदका करने वाले में से बना दे। हरगिज नहीं मोहलत देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को जब आ जाता है मौत का वक्त, और अल्लाह ताला खबरदार है साथ उसके जो तो वो अमल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सूरतुल मुनाफिकीन खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह सूरत तगाबुन करेंगे। सूरत तगाबुन भी मदनी सूरत है। तगाबुन का मतलब होता है गबन,
ठीक है, बंद करना शुरू करती हूँ। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करना है। तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह के लिए हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीन में है, उसी के लिए है बादशाहत और उसी के लिए है सब तारीफ, और वो ऊपर हर चीज के कादिर। अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला की बादशाह तस्बीह, अल्लाह ताला के हर चीज ये कर रही है, तस्बीह कर रही है। अल्लाह ताला के लिए पूरी बादशाहत है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया तुमको, तो कोई तुम में से काफिर है और तुम में से कोई मोमिन है, और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। और उसने पैदा किया आसमान और जमीन को हक के साथ, और सूरत बनाई तुम्हारी, तो अच्छी बनाई सूरत, और उसी की तरफ लौटता है। मतलब अल्लाह ताला ने जमीन आसमान को देखा, हमारी सूरत वगैरह बनाई, फिर उसकी तरफ तुमको लौट कर जाना। वो जानता है जो आसमानों में और जो कुछ जमीन में, और वो जानता है जो तुम छुपाते हो और तुम जो ऐलान करते हो, और अल्लाह ताला जानने वाला है। बेचुने के चाहे हम लोगों को क्या कहते हैं या दिलों में जो बातें, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया इससे पहले, तो उन्होंने चखा बाल यानी सजा अपने कामों का, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मतलब जो पहले, मतलब कुफार मक्का को कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास पहलों की खबर नहीं आई थी, उन लोगों को कैसा अजाब आया था। ये बावजूद उसके जो थे वो उनके आए उनके पास उनके रसूल सात रोशन निशानियों के, वो कहते थे क्या इंसान रहनुमाई करेगा हमारी, तो उन्होंने कुफ्र किया और मुंह मोड़ लिया, तो बेपरवाह हो गए अल्लाह से और उसके, और अल्लाह ताला बेनियाज है, तारीफ वाला। उन्होंने दावा किया उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था कि हरगिज नहीं वो उठाए जाएंगे, उठाए वो नहीं, मतलब उनको मर के झूठ नहीं, कब पर यकीन नहीं था, वो हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दीजिए क्यों नहीं, कसम है तेरे रब की, अलबत्ता तुम जरूर उठाओ जाओगे, फिर अलबत्ता तुम जरूर खबर दिए जाओगे इस बावजूद उसके जो तुम अमल करके आओ। मतलब ये बताया जा रहा है कि मर के जीतना पक्का है, फिर उस दिन तुमको पूरा हिसाब दिया जाएगा, तुम दुनिया में क्या क्या करके आओगे सब चीज बताया जाएगा। और ये बात अल्लाह ताला पर बहुत आसान है, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूलों पर और नूर पर, वो जो नाजिल किया हमने, और अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो बाखबर है। जिस दिन वो जमा करेगा तुमको, जमा करने के दिन, ये दिन है गबन देने का, मतलब यहाँ पे क़यामत के दिन की बात हो रही है। और जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और अमल करेगा अच्छे, तो देगा उससे उनके गुनाहों को, और वो दाखिल करेगा उसको बागात में बहती है उसके नीचे से नहरें, हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा हमेशा। यही कामयाबी है बड़ी, अल्लाह हमें तालिक़ीन को इसमें से कर दे। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, यही वो लोग है आपके साथी हैं, हमेशा रहने वाले हैं, उस पर कितना बुरा है ठिकाना। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। कोई मुसीबत मगर अल्लाह के इज़्न से, मतलब जो भी इंसान को जो भी मुसीबत पहुंचे वो अल्लाह के इज़्न से ही पहुंचे। और जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, तो रहनुमाई करता है उसके दिल की, और अल्लाह ताला साथ हर चीज के इल्म रखने वाला है। और इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, फिर जब मुंह मोड़ो तुम, तो बेशक हमारे रसूल पर पहुंचा देना है। कुल्लम कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, सिर्फ अपना पैगाम पहुंचा देना है। अल्लाह ताला नहीं कोई इला मगर वही चाहिए, बस अल्लाह पर चाहिए कि ईमान लाए मोमिन। ए लोगों जो ईमान लाओ, बेशक तुम्हारी बीवियों में से और औलादों में से दुश्मन है तुम्हारे लिए, मतलब ये बता रहा है अपने औलादों में से बीवियों में से क्या तुम्हारे लिए दुश्मन है, बस बचो उनसे। और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर उनसे और बख्श दोगे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बेशक माल तुम्हारा और औलाद तुम्हारे फितना है, और अल्लाह ताला मतलब फितना मतलब आजमाइश है, एग्जाम है, टेस्ट है हमारे, अल्लाह ताला उसके पास है अजर अजीम। बस डरो अल्लाह से जितनी तुम इस्तेताअत रखते हो, और सुनो और इताअत करो और खर्च करो, बेहतर है तुम्हारे नफ्सों के लिए। और जो कोई बचा लिया गया खुदगर्जी से अपनी नफ्स की, तो यही वो लोग वो जो फना पाने वाले हैं। अगर तुम कर्ज दोगे अल्लाह को, अच्छा कर्ज तो दुगना करेगा उसको तुम्हारे लिए, और वो बख्श देगा तुमको। और अल्लाह ताला खबरदार है, इल्म बुर्दुबार है, खूब जानने वाला है, हाजिर और जबरदस्त है, हिकमत वाला है।
देखिए अल्लाह ताला इन सूरतों में कितने बार बता रहे हैं कामयाबी के फॉर्मूले बता रहे हैं। खर्च हसना से मतलब है दीन की राह में, दीन में माल खर्च करना, अल्लाह को राजी करने के लिए मार्च करना, यहाँ पे माल को खर्च करना। ठीक है, तो अब हम सूरत तलाक करेंगे। सूरत तलाक भी मदनी सूरत है। यहाँ पर शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तलाक दो तुम औरतों को, यहाँ पर नबी को कहकर पूरी उम्मत को पता, जब तलाक दो तुम औरतों को तो तलाक दो उनकी इद्दत के लिए और डरो अल्लाह से। जब जो रब है तुम्हारा, ना तुम निकालो उनको यानी बीवियों को उनके घरों से, और ना वो निकले मगर कि वो आ जाए खुली बिरारियों को। मतलब ये जो इद्दत का टाइम है वो बीवी कहाँ कर अपने शौहर के घर में लगी। और ये हुदूद है अल्लाह की, और जो कोई तजावुज करेगा अल्लाह के हुदूद को तो तहकीक उसने जुल्म किया अपने नजर पर। नहीं तुम जानते शायद कि अल्लाह ताला पैदा कर दे इसके बाद कोई सूरत। मतलब ये है कि कोई भी दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, मतलब साथ में रहेंगे तो रुजू का टाइम हो सकता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी जो थी खत्म हो सकती है। तो ये सारी बता रहे को। फिर जब वो पहुंचे अपनी मुद्दत को तो रोक लो उनको भले तरीके से। अगर चाहते हो तो क्या करो, मतलब रुजू कर लो भले तरीके से, और या छोड़ दो उनको साथ भले तरीके से। मतलब रखना चाह रहे हैं तो इद्दत से मतलब इद्दत खत्म होने से पहले रुजू करना चाह रहे तो रुजू कर लो, या नहीं तो उसको आकर छोड़ देना भी चाह रहे तो भले तरीके से छोड़ देना चाहिए। तो और गवाह बना लो दो अदल वालों को तुम में से, और कायम करो गवाही को अल्लाह के लिए। अगर रुजू भी कर रहे हैं या फिर अगर तलाक भी दे रहे तो क्या करो, दो गवाह बनाने का हुक्म अल्लाह ताला करे अल्लाह के लिए। ये बात वो नसीहत करता है उसको जो कोई है ईमान रखता अल्लाह पर और आखिरत पर, और जो कोई डरेगा अल्लाह से वो पैदा करेगा उसके लिए निकलने का रास्ता। देखिए मतलब ये देखिए जो तलाक वगैरह जो हम समझते हैं कि इससे क्या है, मतलब ये भी है ना, अगर ईमान रखते हो अल्लाह पर ईमान है, अगर यौम आखिरत पर ईमान है तो तलाक वगैरह के मामले भी बिल्कुल जैसा कुरान और सुन्नत में जैसा बताया गया है ना, तो वैसे मामले करना चाहिए। और रिस्क देता है उसको जहां से नहीं वो गुमान करता। मतलब अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, जहां से हम गुमान नहीं करते वहां से हमें रिस्क मिलता है। और जो को तवक्कल करेगा अल्लाह पर तो वो काफी होगा उसके लिए। बेशक अल्लाह ताला पहुंचने वाला है अपने हुक्म को तहकीक बनाया। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए अंदाजा, मतलब अल्लाह ताला ने कि अंदाजा मतलब कि हम ये अंदाजा करते, मतलब अल्लाह ताला ने पूरा प्लानिंग करके बराबर प्रोग्रामिंग की। और वो औरतें जो मायूस हो चुकी है से, मतलब पीरियड्स नहीं आते, मेनोपॉज वगैरह हो गया, तुम्हारी औरतों में से अगर शक हो तुमको कि तो इद्दत उनकी 3 महीने होगी, क्योंकि इद्दत तलाकशुदा की 3 हैज है। अगर हैज नहीं होते हैं उनको तो क्या करना है, हैज नहीं होने वाली औरतें जैसे मेनोपॉज हो या जिसकी पीरियड शुरू ही नहीं हुए तो उनको क्या करना है, 3 महीने उनको लूनार मंथ से उनकी इद्दत पीरियड होगी 3 महीने। और वो औरतें जो नहीं उन्होंने हैज होती और हमल वाली या मुद्दत उसकी कि वो रख दे अपने हमल को। यहाँ प्रेग्नेंट औरतों की हमल वो इद्दत कब तक होगी, जब तक कि उनकी डिलीवरी नहीं होते। और जो कोई डरता है अल्लाह से वो करेगा उसके लिए उसके मामले में आसानी। ये अल्लाह का हुक्म है नाजिल किया उसको तुम्हारी तरफ, और जो कोई डरता है अल्लाह से वो दूर करेगा उसे उसकी बुराइयों को और बढ़ा देगा उसके लिए अजर को। बसाओ इन औरतों को जहां तुम रखते हो अपनी वसत के मुताबिक, और न तुम जरर पहुंचाओ उनको ताकि तुम तंग करो उनको। और अगर हो तुम वो हमल वालियां तो खर्च करो उन पर। मतलब हमल वाली हैं तो अगर प्रेग्नेंट है तलाक दे भी दिए तो डिलीवरी तक क्या करो उनका दाम नफका देना है, यहाँ तक कि वो रख दे अपने हमल को। फिर अगर वो दूध पिलाए तुम्हारी तो दे दो उनको उनकी अजर। मतलब अगर तलाक की भी अगर बीवी है वो उनकी जो एक्स वाइफ है अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो उसकी उजर देना है। और मामला करो आपस में भले तरीके से। और अगर आपस में कश्मकश में हो तुम तो दूध पिला दे कोई दूसरी। मतलब अगर औरत नहीं पिलाना चाह रही तो क्या वो मां नहीं पिलाना चाहिए तो किसी औरत से दूध पिला सकते। और ताकि तुम खर्च करो वसत वाला अपने वसत के हिसाब किया गया उस पर उसका रिस्क तो चाहिए कि वो खर्च करो उसमें से अता किया उसको अल्लाह ने। मतलब जो खर्च करना है ना तो अब हर कोई अपनी वसत के हिसाब से, जो मालदार है तो मालदार के हिसाब से पैसा देगा, जो कम का अल्लाह, जो गरीब है गरीब अपने हिसाब से पैसा देगा। नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को मगर जितना अता किया उसको अनकरीब करेगा अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी को। और कितनी ही बस्तियों में से उन्होंने सरकशी की अपने आपके रब के हुक्म की और उसके रसूलों की तो हिसाब लिया हमने उनसे हिसाब सख्त। मतलब
पिछले और आजाब दिया हमने उनको अजाब सख्त, तो उसने चखा वबाल यानी मजा अपने कामों का और है अंजाम उनके लिए नाकामी तैयार किया अल्लाह ने उनके लिए अजाब शदीद। बस डरो अल्लाह से ए अकल वालो, वो लोग जो ईमान लाए हो। तहकीक नाजिल के अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र से मुराद कुरान है, एक रसूल वो पढ़ता है तुम पर अल्लाह की आयत को रोशन, ताकि वो निकाल दे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अमल किया अच्छे जुल्मात से और नूर के तरफ नूर के, और जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और उसके अमल किए वो दाखिल करेगा उनको जन्नत में बहती है उनके नीचे से नहरें, हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा हमेशा। तहकीक एहसान के अल्लाह ताला ने उसके लिए रिस्क वो ज़ात है जिसने पैदा किया सात आसमानों को और जमीन को, उन्हीं की ईमान उतारता है हुक्म और उनके दरमियान, ताकि हम जान ले बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के कादिर और बेशक अल्लाह तहकीक घेर रखा है साथ हर चीज के इल्म वाला है। अब हम इंशाल्लाह सूरत तहरीम शुरू करते हैं। तहरीम ये भी मदनी सूरत है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तुम हराम करते हो जो हलाल किया अल्लाह ने आपके लिए, तुम चाहते हो रजामंदी अपने बीवियों की और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तहकीक फर्ज किया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खोलना तुम्हारे खस्मों का अपने, और अल्लाह ताला मतलब आप सबको कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के हलाल चीजों का आप क्यों हराम करते हो, कि मतलब आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मतलब वो जो तुमने कसम खाकर हराम कर लिया था, आप क्या करो, वो कसम का कफारा देकर वो चीज को खत्म कर दो। और अल्लाह ताला मौला है तुम्हारा और वो इल्म वाला हिकमत वाला। और जब छुपाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तरफ पास एक अपनी बीवियों से कोई बात, तो जब खबर दी उसकी जाहिर किया उसको अल्लाह ताला ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अपनी एक अज़वाज से कोई बात कही थी ताकि उसका जिक्र किसी और से मत करना, तो वो बात क्या की थी वो उन्होंने कर दी थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अल्लाह ताला ने क्या की थी वो बात उनसे जाहिर कर दी, जाहिर किया उसको अल्लाह ताला ने उसने बता दिया। उसके बाद हिस्से को एराज का बर्ताबाद से फिर जब खबर दी उसकी साथ उसके बोली किसने बताया आपको, ये कहा बताया मुझको इल्म वाले ने खबर वाले। अगर तुम दोनों तौबा कर लो, ये जो है ना जो सादा है कि ये जो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बीच का वाकया है। उन्होंने एक दूसरे को हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया, आयशा रज़ी अल्लाह तो कोई बात बता दी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं बताना है। कहा बताया मुझको इल्म वाले ने खबर वाले ने, तुम दोनों तौबा कर लो अल्लाह की तरफ, तो तहकीक झुक पड़े तुम दोनों के दिल, और अगर और नहीं तुम दोनों ने मदद की उसकी, बेशक अल्लाह ताला वो मौला है उसका, और जिब्रील अलैहिस्सलाम और साले मोमिन और फरिश्ते इसके बाद मददगार हैं। उम्मीद है कि आपका रब कि आप तलाक दे दो औरतों को के बदल दे उसके बदले बीवियों को बेहतर तुमसे मुस्लिमात में से ईमान वालियां फरमा बरदार इताअत करने वाली, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली, रोजे रखने वाली, शोहर वालियां और कवारी लोगों जो ईमान लाए हो। बचाओ अपने नफ्सों को और अपने घर वालों को आग से, और ईंधन उसका लोग और पत्थर होंगे, उस पर फरिश्ते सख्त दिल नहीं नाफरमानी करते अल्लाह की जो उसने हुक्म दिया उसको, और वो करते हैं जो वो हुक्म जो हुक्म देते हैं। ऐ लोगो जिन्होंने कुफ्र किया है ना माजिरत करो, आज बेशक सजा दिए जाओगे जो थे तुम अमल करके आए हो। ऐ लोगो जो ईमान ले तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबा खालिस, उम्मीद है रब तुम्हारा के दूर कर दे तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, और वो दाखिल करे तुमको बागात में बहती है उनकी नीचे से नहरें। उस दिन ना रुस्वा करेगा अल्लाह ताला उन लोगों को, ना रुस्वा करेगा अल्लाह ताला नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ। नूर उनका दौड़ता होगा उनके आगे आगे, यहाँ पे पुलसात पर की बात हो रही है, और उनके दाहिने, और वो कहेंगे ऐ हमारे रब पूरा कर हमारे लिए हमारे नूर को, और बेशक दे हमको, बेशक तू उस पर हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हमें ये नूर अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कीजिए कुफार से और मुनाफिकीन से, और सख्ती कीजिए उन पर, और ठिकाना उनका जहन्नम में कितना बुरा है ठिकाना बयान किया अल्लाह ताला ने। मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की, वो दोनों
थी मातहत दो बंदों की, हमारे बंदों में से नेक बंदों की, तो उन दोनों ने खयानत की, उसकी तो नहीं काम आए उन दोनों को अल्लाह से कुछ भी, और कहा जाएगा दाखिल हो जाओ आग में, दाखिल होने के साथ। और मिसाल की दी है अल्लाह ताला ने, मिसाल उन लोगों की जो ईमान लाए बीवी फिरऔन की, और जब कहा उसने कहा ऐ मेरे रब तेरे बना मेरे लिए तेरे पास एक घर जन्नत में से, और वो निजात देगा मुझको, और निजात दे मुझको फिरऔन से। यहाँ पे देखिए इस हजरत आसिया का जिक्र होगा, उन्होंने दुआ की थी। देखिए फिरऔन कैसा इंसान था, उसके पास रहते भी वो ईमान लाई थी, और उन्होंने कहा था कि अब वो उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने जन्नत में घर की दुआ की थी, बना मुझ और बच्चा कहा था कि बदला बचा मुझको फिरौन से और उसके अमल से, और निजात दी हमने उसको कौम जालिम कौम से। और मरियम बेटे इमरान की मरियम अलैहिस्सलाम, वो जिसने हिफाजत की थी अपनी शर्माओं की, तो फूंका हमने अपनी रूह में से, और उसने तस्दीक की 7 कलीमे की अपने रब की और उसकी किताबों की, और वो थी फर्माबरदारों में से। यहाँ पे वो किताबों की मतलब तौरात इंजील की। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2800 पर खत्म होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا